Good morning, everyone. In the previous lecture, we have discussed about some basic concepts of IR spectroscopy and or vibrational spectroscopy. In this lecture, we have discussed about some detailed process of IR spectroscopy. We know that the term spectroscopy is made up of two words, that is spectro and second one is scopy. This spectro means radiations and the scopy means measurements. Therefore, this term spectroscopy means or known as measurement of radiations. Now, we know that to perform IR spectroscopy, we need a range of electromagnetic spectrum, that is IR radiation. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म करने के लिए मेरे को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक रेंज की जरूरत पड़ती है और वो रेंज है IR रेंज, जो हमें कहां से मिलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से. एंड दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहां पे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एक स्पेसिफिक पैटर्न में रेंज की जाती है. और वो पैटर्न किस तरीके से होता है? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, IR rays, microwaves and radio waves. To perform this IR spectroscopy, we need this IR radiation range. And this IR radiation range is classified into three categories, so three regions. First one is near IR region, second one is mid IR region, and last one or third one is far IR region. This IR region or near IR region lies between 0.8 micron to 2.5 micron, and this mid IR region lies between 2.5 micron to 15 micron, and third one is far IR region lies between 15 micron to 200 micron. ये जो हमने क्लासिफिकेशन की है, ये हमने इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ की है, वेवलेंथ की टर्म में की है. अगर यही क्लासिफिकेशन हमने वेव नंबर की फॉर्म में करनी होगी, तो वी नो दैट वेव नंबर इक्वल्स टू 1 upon lambda, that is where lambda is wavelength, where lambda is the wavelength. तो मेरे पास तीन रीजन्स हैं IR रेडिएशंस में: नियर, IR रीजन, मिड IR रीजन एंड फार IR रीजन. अगर मैं वेवलेंथ की टर्म्स में बात करूंगा, तो क्लासिफाई होंगे 0.8 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन
15 micron and 200 micron. एंड अगर मैं वेव नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ 0.5 माइक्रोन को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/0.5 माइक्रोन। और इस माइक्रोन को जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर एंड 0.5 into 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स into 0.5 centimeter inverse, and which is equals to 12,500 centimeter inverse. So जो वेव नंबर की फॉर्म में मेरा IR रीजन क्लासिफाई हो रहा था, सॉरी वेव लेंथ की फॉर्म में मेरा IR रीजन क्लासिफाई हो रहा था, अब वो वेव फॉर्म में 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा अगर मैं बात करूंगा 2.5 माइक्रोन वेवलेंथ की लाइट की, तो मेरे पास जो वेव नंबर आएगा वो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर which is equals to 4,000 centimeter inverse, and the last one, second last one is 15 micron, which is equals to 667 centimeter inverse, and for 200 micron we have wave number of 15 centimeter inverse. Right now again we classify this IR region in form of wave numbers. So we get 12,500, 4,000 centimeter inverse, 667 centimeter inverse, and 50 centimeter inverse. So this IR region classified, this IR region lies between 0 to 2.5 micron or 12,500 to 4,000 centimeter inverse. Similar middle IR region lies between 2.5 micron to 15 micron or 4,000 to 667 centimeter inverse in terms of wave number. And the last one is far IR region, which lies between 15 micron to 200 micron, or in terms of wave number 667 to 50 centimeter inverse. Right now here is the information obtained from IR spectroscopy. IR spectroscopy से हम क्या information obtain कर सकते हैं? First one, we use
IR spectroscopy to determine the functional group. Here IR radiation is used and absorption spectroscopy is used, and in this IR spectroscopy we use the rotational vibrational spectra. Now we are discussing about the transmission and absorption of IR spectroscopy, right? In IR spectroscopy mainly we have three components. First one is source, second sample, and third one is detector, and the third one is detector. Here source is IR radiation source. IR radiation source जो है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स होगी. In IR source light we have different wavelength of light जो क्या करेगी इस सैंपल के पास इंटरेक्ट करके और एब्जॉर्ब होगी, और बाकी जो ट्रांसमिट लाइट होगी वो डिटेक्टर के पास क्या होगी, डिटेक्ट होगी. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास IR सोर्स है, IR रेडिएशन का सोर्स है, दैट इज वन ऑफ द फेमस IR सोर्स नरनेस ग्लोबल. ठीक है, ये मेरे पास एक सोर्स है IR. Here we use the source for IR radiation source is Nearness Global. This is the famous or most known source in IR spectroscopy. ये जो सोर्स है ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसमिट करेगा. और अगर मैं कोई सैंपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, और मैं कोई सैंपल लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड, ये सोर्स क्या करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसमिट करेगा, और ये जो सैंपल के पास देगा, ये सैंपल जो है सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी इसको फिर से ट्रांसमिट करेगा और डिटेक्टर के पास भेज देगा. बोलने का मतलब क्या है कि ये IR रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है, सैंपल उस स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है उसको ट्रांसमिट करके डिटेक्टर के पास भेज रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को क्या कर रहा हूं, सैंपल के पास दे रहा हूं, और सैंपल मेरे पास क्या है, सैंपल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैस फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है. इस सैंपल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, गैस फॉर्म में हो सकता है. तो मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है सैंपल का फॉर्मेल्डिहाइड. ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जो मैंने सैंपल की जगह प्लेस करके रखा हुआ है. अब IR सोर्स ने, नरनेस ग्लोबल ने डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या किया, एमिट किया. अब ये जो इसका इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो है, जहां पे बेसिकली हमने वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करना है, इस इंटर एटॉमिक बॉन्ड ने क्या करना है, वाइब्रेशंस करनी है. और वो वाइब्रेशन किस फॉर्म में होगी, या तो स्ट्रेचिंग की फॉर्म में होगी, या क्या होगी, बेंडिंग की फॉर्म में होगी. ये जो वाइब्रेशंस है किस फॉर्म में होगी, स्ट्रेचिंग की फॉर्म में होगी या बेंडिंग की फॉर्म में. IR सोर्स ने लाइट को एमिट किया. अगर जैसे ही 1200 सेंटीमीटर इनवर्स की लाइट
इस फॉर्मेल्डिहाइड पे पड़ेगी, ये उसको एब्जॉर्ब करेगा और इसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और वो वाइब्रेशंस कौन सी होगी? बेंडिंग वाइब्रेशंस। अगेन जैसे ही इसके पास 1700 सेंटीमीटर इनवर्स की लाइट स्ट्राइक करेगी, ये फिर से वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। और वाइब्रेशन कौन सी होगी? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। ज्यादा डिटेल जाने से पहले हम थोड़ा सा वाइब्रेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेरे पास वाइब्रेशंस को अच्छे से करने के लिए मैं क्या कंसीडर करता हूँ, जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो एटम्स हैं, जो उनके बीच का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को मैं स्प्रिंग की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो उनके बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को मैं स्प्रिंग की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये एटम्स जो है ये आपस में स्ट्रेच और कंप्रेस हो रहे हैं, तो उसको मैं बोलूंगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। और अगर यही एटम्स आपस में बेंड हो रहे हैं, तो मैं इनको क्या बोलूंगा? बेंडिंग वाइब्रेशंस। इसको मैं क्या बोलूंगा? बेंडिंग वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल देखो, वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें क्या बता रहा है कि कोई भी चेंज आइदर इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग, वाइब्रेशंस और इंटरनल रोटेशन, किसी भी फॉर्म में कोई चेंज हो रहा है तो वो क्या है? वाइब्रेशंस है। ये वाइब्रेशंस दो टाइप की है, ये वाइब्रेशंस दो टाइप्स की है। First one is stretching and next one is bending. In stretching vibration, the bond length of the molecule, changes. But in bending vibrations, the bond angle of the molecule changes. ठीक है। बेंडिंग के केस में क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो रहा है, और स्ट्रेचिंग के केस में क्या हो रहा है, जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो रही है। और ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अगेन क्लासिफाई होगी टू कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक एंड सेकंड वन इज एसिमेट्रिक। And this bending vibration again classified into 4 categories. First one is scissoring, second one is twisting, and third one is rocking, and last one is waking. इन वाइब्रेशंस की क्लासिफिकेशन को अगर हमने ध्यान से समझना है तो हम प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर आ जाएंगे। दिस इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। जो बॉन्ड लेंथ है मॉलिक्यूल की, ये जो बॉन्ड लेंथ है कि दो एटम्स की जो किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर है, ये बॉन्ड लेंथ जो है, दिस बॉन्ड लेंथ इज चेंज्ड। अब ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होती है।
फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक एंड सेकंड वन इज एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सिमेट्रिक तरीके से वाइब्रेट हो रहे हैं। बोलने का मतलब ये है ये सिमेट्रिक तरीके से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, दोनों या तो दोनों ही स्ट्रेच होंगे या दोनों ही क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। लेकिन एसिमेट्रिक के केस में क्या हो रहा है, जो इनकी बॉन्ड लेंथ है ये एसिमेट्रिक तरीके से डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये एटम्स जो है ये कंप्रेस हो रहा है तो दूसरे वाला एटम क्या हो रहा है, वो स्ट्रेच होगा, और रिवर्स अगर ये एटम स्ट्रेच हो रहा है तो ये एटम कंप्रेस होगा। ठीक है, अगर ये एटम स्ट्रेच हो रहा है ये वाला एटम क्या होगा, कंप्रेस होगा, और अगर ये वाला एटम कंप्रेस हो रहा है तो ये वाला एटम क्या होगा, स्ट्रेच होगा। ये एसिमेट्रिक केस है। एंड सेकंड जो वाइब्रेशन है मेरे पास वो क्या है, बेंडिंग है। इस केस में क्या हो रहा है, जो बॉन्ड एंगल है किन्हीं दो एटम्स के बीच में और किन्हीं एटम्स के बीच में, वो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। ये अगेन क्लासिफाई होंगे 4 कैटेगरीज में। First one is scissoring, second one is twisting, third one is rocking, and last one is wagging। सीजरिंग के केस में क्या हो रहा है कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास एटम्स हैं इस तरीके से, तो ये जो एटम्स हैं उस सिमेट्रिक पैटर्न में एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं और एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, जस्ट लाइक ए सीजर। इस तरीके से ये सिमेट्रिक वे में एक दूसरे के पास आ रहे हैं और सिमेट्रिक वे में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस तरीके से इनके बीच में क्या होगा, बेंडिंग वाइब्रेशंस होगी। पर क्या होगा, इस सेम प्लेन होगी। बट ट्विस्टिंग के केस में क्या होगा, ये वाइब्रेशंस तो होंगी, इसी तरीके की वाइब्रेशंस होंगी, लेकिन कैसी होगी, आउट द प्लेन। देखो सीजरिंग के केस में क्या हो रहा है, इस तरीके की वाइब्रेशन हो रही है जस्ट लाइक सीजर। इसमें भी वैसे ही होगी, लेकिन क्या होगी, प्लेन के बाहर होगी। अगर मान लो बीच में मेरे पास स्पेस है तो इस तरीके से वाइब्रेशन हो रही है इसकी अंदर और बाहर वाली साइड के, लेकिन सीजर के केस में इस तरीके से वाइब्रेशंस होगी। ठीक है, रॉकिंग, द नेक्स्ट वन इज बेंडिंग वाइब्रेशन इज रॉकिंग। रॉकिंग के केस में क्या हो रहा है, मेरे पास जो वाइब्रेशंस हैं वो दोनों एक ही साइड को हो रही है, दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही साइड को जा रहे हैं, राइट साइड को और लेफ्ट साइड को। ठीक है, पर क्या हो रहा है, जो उसका बॉन्ड एंगल है ये मेरे पास वाइब्रेशंस की बात है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं जहां से हमने स्टार्ट किया था कि मेरे पास आईआर रेडिएशन से आईआर सोर्स से, जिसको मैंने क्या कंसीडर किया था, नियरनेस ग्लोबल, यहां से लाइट क्या है, एमिट हो रही है, उस सैंपल के पास जाएगी। सैंपल क्या करेगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा और जो ट्रेस लाइट होगी उसको ट्रांसमिट कर देगा, और वो ट्रांसमिटेड लाइट क्या होगी, डिटेक्टर के पास जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास
सोर्स है, ये सोर्स क्या करेगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ की, डिफरेंट वेवलेंथ की, स्पेसिफिक नॉट स्पेसिफिक, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, इस फॉर्मेल्डिहाइड जो हमने सैंपल कंसीडर किया था इसके पास क्या करेगा, भेजेगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा, 1200 वेव नंबर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये 1200 वेव नंबर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे बेंडिंग वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जैसे ये 1700 सेंटीमीटर इनवर्स की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा, यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी जितनी भी लाइट है जो 1200 एंड 1700 सेंटीमीटर इनवर्स से बचती है, वो सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट होकर कहाँ चली जाएगी, डिटेक्टर के पास। और हमें एक स्पेक्ट्रम ग्राफ मिलेगा, इसके बीच में ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में, ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में वो किस तरीके से होगा, दिस इज 100% ट्रांसमिटेंस, 4000 3000 2000 एंड 1000। जो उसने लाइट एब्सॉर्ब की थी, एक की थी अप्रोक्सीमेटली 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे और दूसरी की थी 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो जो मेरे को पीक्स मिलेगी कुछ इस तरीके से मिलेगी, दो पीक्स मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, राइट। तो क्या हो रहा है कि सोर्स ने क्या किया, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एमिट किया, वो एमिटेड जो लाइट है वो फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर पड़ी, और फॉर्मेल्डिहाइड ने 1200 और 1700 सेंटीमीटर इनवर्स की लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगी। कौन सी वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के केस में बेंडिंग स्टार्ट होगी, और 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के केस में क्या होगा, स्ट्रेचिंग स्टार्ट होगी। और जितनी बाकी इसके अलावा 1200 और 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के अलावा जितनी भी लाइट थी वो क्या किया, उसने डिटेक्टर के पास देखी, और मेरे पास एक स्पेक्ट्रम ग्राफ मिल गया जो किसके बीच में था, ट्रांसमिटेंस एंड वेव नंबर के बीच में जो था वे एक ग्राफ था। तो ये जो सारा प्रोसीजर है वो क्या है मेरे लिए, ये सारा प्रोसीजर क्या है, इस सारा प्रोसीजर क्या है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें हम IR रेडिएशन की लाइट को क्या है यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने वाइब्रेशंस की बात की है, तो कितने टाइप की वाइब्रेशंस हैं हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने टाइप्स की वाइब्रेशन किसी मॉलिक्यूल में हो रही है उसके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स, the total number of vibrations (3n-5) and for non-linear molecule the total number of vibrations 3n-6, where n is the number of atoms, where n is the number of atoms.
ठीक है, जो लीनियर मॉलिक्यूल्स है उनका क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स है उनका जिगजैग स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल लीनियर केस लेता हूं मैं CO2, तो CO2 के पास क्या है, 3 एटम्स हैं, कौन कौन से, कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इस तरीके से कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। इसके पास जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है उसको कैलकुलेट करना होगा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 3n-5, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 into 3 minus 5 into 9 minus 5 which is equals to 4, which is equals to 4। तो CO2 के केस में जो है, जो मेरे पास वाइब्रेशंस होगी वो कितनी होगी, 4 टाइप्स की वाइब्रेशंस होगी। और कौन सी वाइब्रेशंस होगी, कौन सी वाइब्रेशंस होगी CN के केस में, एक होगी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सीजरिंग, बेंडिंग आउट द प्लेन एंड सीजरिंग बेंडिंग इन द प्लेन। ठीक है, बेंडिंग द प्लेन का मतलब है कि यहाँ पे जो है ये ट्विस्टिंग की बात कर रहा है और ये सीजरिंग की बात कर रहा है। तो फॉर्मूले से मेरे पास कितने टाइप की वाइब्रेशंस होगी CO2 मॉलिक्यूल्स के पास, 4 टाइप की वाइब्रेशन। कौन कौन सी, ये 2 किसकी होगी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, एंड 2 कौन सी होगी, बेंडिंग वाइब्रेशंस। कौन सी, सीजरिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल हम कंसीडर करें H2O का, जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का केस है, जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का केस है, इस केस में भी n की वैल्यू कितनी है, 3 है। कैसे, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी हो जाएगी, 6 which is equals to 3। इसमें भी 2 जो है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होगी, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, जो हमें 3652 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलेगी, और दूसरी एसिमेट्रिक 3756 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलेगी, एंड एक बेंडिंग वाइब्रेशन मिलेगी which is again सीजरिंग, जो हमें 1596 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलेगी।